Hello everyone. Today we are going to study about the sexual reproduction in flowering plants, that is angiosperms. That is the first chapter of the class 12th biology. First of all, what is the sexual reproduction is? The production of new individuals from the parents of same species is called reproduction, and sexual reproduction involves two parents, that is male and female. Flower, it is a reproductive organ of plants. It consists of four holes: carpel and pistil, stamen, sepals and petals. Carpel or pistil collectively known as gynoecium, stamen collectively known as androecium, sepals collectively known as calyx, and petals collectively known as corolla. Carpel or pistil, this is the female reproductive part of the flower. Stamen is the male reproductive part of the flower. Sepals actually protect the flower in bud stage, and petals attract the insects for pollination process. Now the pre-fertilization structures and events. Stamens represent male reproductive organ while gynoecium represents female reproductive organ. Stamen, microsporangium and pollen grain. Stamen consists of two parts, anther and filament. Anther is bilobed. It consists of two lobes, diathecous, two cavities are there, and fertile, while filament is the long and slender and sterile. Bilobed, you can say, bilobed is like that. This is what we can say bilobed. Okay. Here you can clearly see bilobed structure of the stamen. Theca cavity, this is the theca cavity. Distal end of the filament means this is at a distance, and this is the receptacle where all the parts of the flowers meet, also known as thalamus. Petals are the proximal, means इधर साइड पेटल्स होंगे और यहाँ पे डिस्टल एंड है फिलामेंट का. कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट कर रहा है इन दोनों लोब्स को, एंड दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द फर्टाइल पार्ट, दिस इज द स्टेराइल पार्ट. ओके. स्टेमन, this is microsporangium. You see here everything is clearly visible, that these are the middle layers. This is the microsporangium, connective tissue, epidermis, sporogenous tissue, tapetum which provides nutrition to it, endothecium. Microsporangium is surrounded by four ball layers: epidermis, endothecium, middle layers, tapetum. Outermost layer is the epidermis, which is single in number. Endothecium also single in number. Middle layers 1 to 3 layers. Tapetum, it is also single in number. Tapetum contains dense cytoplasm and nucleus, and it provides nutrition to the developing pollen grain. So these epidermis, endothecium and middle layers, these three layers provides protection to developing pollen grains, and this tapetum, it provides nourishment to developing pollen grains. Okay. Dehiscence. What actually dehiscence is? It is the split or explosion of pollen sac to release pollen grains. Right. Now what is microsporogenesis? Formation of microspores from microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ओके. माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से थ्रू मियोसिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नेम से भी समझ सकते हैं आप. माइक्रोस्पोरो मीन्स माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मीन्स टू जनरेट, टू प्रोड्यूस, फॉर्मेशन. So formation of microspores from microspore mother cells through meiosis is called microsporogenesis. Here step by step process is given. Okay. Inside here you see inside microsporangia. Here you see this is the microsporangia. Inside this microsporangia, many microsporocytes or mother cells are present, which undergo meiosis and form four microspore. These microsporocyte or microspore mother cell, these are diploid. Four microspores which are produced, these are haploid, and this process of formation of microspores from microsporangia is known as microsporogenesis. Okay, so these four microspores remains in tetrad condition like this. Development takes place, four pollen grains are formed, and from one pollen grain two male gametes are formed.
Total 8 male gametes. Okay, one pollen grain will form 2 male gametes. Now the microgametogenesis. The process of formation of male gametes from pollen grains is called microgametogenesis, male gametogenesis. Pollen grain, it is single celled, haploid, spherical, diameter 25 to 50 micrometer. Pollen grain has protein on outer part which helps in compatibility and check on stigma. Here you see, this is the pollen grain, right? Inner layer is intine, this is the gram pore, and this is the outer layer extine. It is found in different shapes, exine. Most resistant organic compound found till date is sporopollenin. So this exine is made up of most resistant organic compound found till date, that is sporopollenin. This is important. This layer is not continuous. This is hard and protective, intine. It is made up of cellulose plus pectin. Continuous layer है. This layer germinates as pollen tube, which is thin, soft and flexible, and this is pollen grain. Pollen grain may cause allergy and cause respiratory diseases like asthma, bronchitis. Parthenium and carrot grass, these are the weeds that has come with imported wheat and cause allergy. Viability. Validity होती है ना OTP की, कि this OTP is only valid for 2 minutes. After 2 minutes it will become invalid. Similarly, जो pollen grains होते हैं उनकी viability होती है. For example, wheat and rice का 30 minutes. After 30 minutes they will lose their viability, right? Rosaceae, Leguminosae, Solanaceae की viability few months तक होती है. This is pollen grain, haploid. First mitosis asymmetric. Okay, it is asymmetric. It will undergo first mitosis. You see here, two divisions are there. This is vegetative cell or tube cell, haploid. This is generative cell, haploid. This vegetative cell or tube cell, it is large and food reserve. It will provide food to the developing pollen grain. This generative cell, dense cytoplasm and nucleus. 60% of angiosperms pollination occurs at 2-celled stage. In 40% of angiosperms pollination occurs at 3-celled stage. Second mitosis takes place in generative cell to form 2 male gametes, 1 meiosis and 2 mitosis. If number of male gametes equals to 1000, how many microspore mother cell was there? So 1 microspore mother cell forms 8 male gametes. For 1000 male gametes, 1000 divided by 8. Microspore mother cell 125. ओके, यहाँ पे हमने देखा था 1 meiosis हुआ था pollen grain के formation के लिए. You see here microsporangia से microspore बना था, फिर tetrad condition में development होके 4 pollen grains बन गए थे, right? Mitosis हुआ था, pollen grain जो है 2 उसमें divide हो गया था पार्ट्स में. वेजिटेटिव सेल लार्ज था, जनरेटिव सेल स्मॉल था कंपैरेटिवली. वेजिटेटिव सेल लार्ज था बिकॉज इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन. जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. पिस्टिल और कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज द स्टिग्मा, इट इज अ स्टिगी पार्ट. दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल. दिस इज ओवरी एंड इनसाइड ओवरी लॉक्यूल, कैविटी ऑफ ओवरी. इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है ओवरी के. Flower may be monocarpellary and polycarpellary. Mono means single, single carpel. Poly means many, many carpel. Carpel is what? Female reproductive part of the flower. Monocarpellary का example है mango, and in polycarpellary we have 2 conditions: syncarpus, apocarpus. Syn means fused. If the carpels are fused, syncarpus. If carpels are free, apocarpus. Right? Syncarpus में example है papaya, mustard, hibiscus, and in apocarpus examples are lotus, rose and mycelia. Pistil और carpel को क्या बोला जाता है? Megasporophyll. And another name of ovule is megasporangia. So remember it, pistil and carpel's other name is megasporophyll and ovule megasporangia. Right? You can see here. This is what? This is the ovule. अपर एंड को आप चलाजल एंड कहेंगे एंड लोअर एंड को माइक्रोपाइलर एंड. इनसाइड दिस ओव्यूल न्यूसेलस इज प्रेजेंट कवरिंग इंटीग्यूमेंट सीड कोट. दिस इज द हाइलम, अटैचमेंट बिटवीन द फ्यूनिकल कॉर्ड एंड द ओव्यूल. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फ्यूनिकल कॉर्ड.
which is attached to the placenta, right? Ovule. Pollen tube will enter from this end. Pollen tube कहाँ से enter करेगा? Micropylar end से enter करेगा. न्यूसेलस सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं. मेन फंक्शन क्या होता है न्यूसेलस सेल्स का? स्टोरेज. न्यूसेलस सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं. एनी वन ऑफ द सेल फ्रॉम न्यूसेलस विल डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल. तो ये जो न्यूसेलस सेल्स हैं इनमें से कोई एक सेल जो का डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा, राइट. मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है. 1 मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस. 4 मेगास्पोर्स बनेंगे. Process will known as megasporogenesis. Out of these 4 megaspores, 3 will degenerate. Only 1 will remain functional. That is known as a monosporic development, as only one is allowed to develop. Then embryo sac. First mitosis will take place. These all are occurring at which end? We studied 2 ends, chalazal end and micropylar end. This all is occurring at micropylar end. Okay. First mitosis will take place. Free nuclear division is occurring. Now second mitosis will take place. See, free nuclear division. 2 से 4 nuclei हो गए. 4 से 8 nuclei हो गए. Third mitosis. Free nuclear division means only the nucleus is dividing. Cell wall or cell membrane is not dividing. Okay, you see here. This is the central cell. These two in the center, polar nuclei, both are haploid, antipodal cells, and this is the egg and this is the synergids, and by combining they form the egg apparatus, and this is what we call it 7-celled and 8 nucleus, as 8 nucleus are there and cells are 7. So 7-celled and 8 nucleus. This is embryo sac. Okay, any one of the synergid form filiform apparatus. It guides the pollen tube inside the ovum. Embryo sac is known as the female gametophyte, and what is pollen grain is known as male gametophyte. Okay. Pollination. The transfer of pollen grains from anther to filament is known as pollination. It is of 2 types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination. Autogamy and geitonogamy. Autogamy means self, no agents are required. In geitonogamy, pollinating agents are required, right? Cross-pollination, xenogamy and allogamy. These are the other names of cross-pollination. Pollinating agents are required here. Now, what is the difference between self-pollination and cross-pollination? Self-pollination means both the flowers are present on the same plant or same tree, while in cross-pollination, the male and female flowers are present on the different plants, right? Chasmogamous flower. Anther and stigma are exposed. Autogamy, geitonogamy and genogamy takes place under this. Cleistogamous flowers are present in cluster. Anther and stigma are not exposed. Only autogamy takes place. Flower is like bud here. Geitonogamy is genetically similar to autogamy. Geitonogamy is genetically similar to autogamy, but functionally it is similar to genogamy. Why is it said so? Because we know very well that in autogamy and geitonogamy, both are the types of self-pollination. Means flowers are present on the same plant. While in geitonogamy, pollinating agents are required, and in allogamy, xenogamy also pollinating agents are required. So it is genetically similar to autogamy, while functionally it is similar to genogamy or allogamy. Okay. Pollinating agents, abiotic and biotic. Majority of the pollinating agents are biotic. Abiotic means non-living things and biotic means living things. Abiotic factors involved. First of all, what are the pollinating agents? Pollinating agents are the agents which help in pollination process, right? Abiotic and biotic, majority of them are biotic. In abiotic, wind and water are main pollinating agents. Wind के थ्रू कौन से pollen grains जो हैं उन वो ट्रांसफ़र होते हैं? लाइट, नॉन स्टिकी, stamens are well exposed, stigma are large and feathery, water rare होता है.
30 जेनेरा ही हैं जो वाटर को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं. इन बायोटिक, pollen grains are sticky and mainly bees are pollinating agents, right? Bind pollinated flowers have single ovule in each ovary. Numerous flowers are packed into an inflorescence. What is inflorescence? Inflorescence is the arrangement of flowers on floral axis. Corn cob. Tassels of corn cob are style and stigma. Water hyacinth, water lily. Aquatic but pollinating agent, either bind or insect. These water hyacinth and water lily, these are the aquatic plants, but still water is not used as a pollinating agent. What is the pollinating agent in this case? Wind or insect. Vallisneria and hydrilla, freshwater aquatic plants हैं. Vallisneria consists of coiled style. Pollination takes place over the surface of water. Zostera, seagrass, found in marine water. Pollen grain is ribbon-like so that it could carry easily to female plant through water currents. Aquatic pollen has mucilaginous sheath to protect or prevent pollen grains from bedding. Abiotic and biotic. Abiotic, no nectar, no color, no odor is required for pollinating agents, while in biotic, have nectar, have fragrance, have odor to attract the pollinators. Rewards for pollinating agents: nectar, pollen grain, Amorphophallus, tallest flower 6 feet, Yucca plant, Porpula moth, pollinating agent है इसका, को एक्सटिंक्शन में रहते हैं ये दोनों. यक्का प्लांट जो होता है पॉर्पुला मोथ को अलाउ करता है कि ये अपने एग ले कर सके यहाँ पे, और पॉर्पुला मोथ जो होता है यहाँ पे यक्का प्लांट के सर्वाइव करता है. मतलब दोनों को एक्सटिंक्शन में रहते हैं. एक अगर ये नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा. यक्का प्लांट यूज़ करता है पॉर्पुला मोथ को एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट. ओके. प्रोवाइड्स सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स. यक्का प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू लार्वा, और ये एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ करता है यक्का प्लांट के लिए. ओके. Pollen pistil interaction. Chemical dialogue to check compatibility, if it is of right type, if it is of wrong type. Right अगर wrong type का होगा, wrong type means different species का होगा, self incompatibility होगी तो pollen grain को reject कर देगा जो pistil है. pistil में भी stigma. अगर right type का है तो pollen grain will develop pollen tube, right? ovary तक पहुँचेगा, ovule तक जाएगा एंड ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड आपका फर्दर एम्ब्रियो वगैरह डेवलप होगा. डबल फर्टिलाइजेशन. वाई आर वी कॉलिंग इट डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज देयर आर 2 polar nuclei दीज, राइट. सो यहाँ पे फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन होता है और उसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बनता है. इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है. क्योंकि हमें पता है ना, 1 pollen grain विल गिव अस 2 male gametes. दीज आर द एंटीपोडल्स. ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग है, राइट. तो ये तो डीजनरेट कर जाएंगे एंटीपोडल्स, इनका कोई फंक्शन नहीं है. सिनर्जिड्स पेजिफॉर्म एपरेटस में खुद को डेवलप करेगा और ये दोनों फ्यूज़ होकर क्या बना लेंगे? सेकेंडरी और डेफिनेट न्यूक्लियस. ओके. फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को टू एम्प्टी मेल गैमेट्स थ्रू सिनर्जिड. ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म हुआ है ये गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को कि किस तरीके से इसको अपने मेल गैमेट जो है एम्प्टी करने सिनर्जिड्स के थ्रू, राइट. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन. वी हैव 1 pollen grain से 2 मेल गैमेट मिलेंगे. तो एक मेल गैमीट जो होगा वो एग और ओवम के साथ फ्यूज़ कर सिनगैमी कर इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी. क्या बना लेगा? जायगॉट. जायगॉट फिर फर्दर एम्ब्रियो बनाएगा, राइट. 1 मेल गैमीट जो एक और मेल गैमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो यहाँ पे जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूज़ होके क्या बनाया था? सेकेंडरी न्यूक्लियस. तो 1 मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होके क्या कर लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेगा. ट्रिपल फ्यूज़न. वाई वी आर कॉलिंग इट ट्रिपल फ्यूज़न? 1 मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 है ना, 2 न्यूक्लियस है ना यहाँ पे, 2 ये हो गए, एक ही हो गया, तो ट्रिपल फ्यूज़न. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट. देन एंडोस्पर्म, इसका डेवलपमेंट होगा फर्दर एंड एंडोस्पर्म बनेगा, राइट.
यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पॉलन ग्रेन है, वन पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट्स मिलेंगे। सो ये तो डीजनरेट हो जाएगा। एक मेल गैमीट इसके साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर दोनों फ्यूज़ होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए हैं ना। तो एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। और ट्रिपल फ्यूज़न, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हैं, एक उसके पास होगा मेल गैमीट के पास, तो ट्रिपल फ्यूज़न हो गया। और एक और जो आपका मेल गैमीट होगा वो इसके साथ एग के साथ मिलकर, ओवम के साथ मिलकर सिंगेमी कर क्या बना लेगा, जायगोट, जो फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। राइट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूज़न, double fertilization. After fertilization, what will happen? Primary endosperm cell and zygote. Post fertilization structures and event. Fertilization के बाद हमको क्या क्या मिला, एम्ब्रियो मिला, एंडोस्पर्म मिला, सीड एंड फ्रूट। अभी जो सीड और फ्रूट हैं, ऐसा नहीं है सीड का डेवलपमेंट पहले होगा फ्रूट का पहले होगा, नो, डेवलपमेंट ऑफ बोथ सीड एंड फ्रूट्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। राइट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में से आपके अकॉर्डिंग किसका डेवलपमेंट पहले होना चाहिए? ऑब्वियसली एंडोस्पर्म का, बिकॉज एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। राइट, तो डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का पहले होता है, एम्ब्रियो से न्यूट्रिटिव होता है, एंड ये जो होता है ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म हैज़ फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो याद रखना है, एंडोस्पर्म जो होता है 3 एंड ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट। Now endosperm, cellular, free nucleus, cellular, white kernel of coconut is cellular endosperm, and liquid जो होता है कोकोनट का फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। आपको कोई बॉल दिखता है, लिक्विड होता है ना ओनली, देयर इज़ नो सेल वॉल और देयर इज़ नो सेल वॉल अराउंड दैट न्यूक्लियर, तो फ्री न्यूक्लियस होता है। राइट, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं। यू सी इट्स द जायगोट, सिंगल सेल है, डिप्लॉइड है। सिमेट्रिकल माइटोसिस, सिमेट्रिकल मीन्स इक्वल, दोनों सेल्स जो होंगे वो इक्वल हैं, सेम है। अपर टर्मिनल सेल एंड लोअर बेसल सेल सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं। नाउ लोअर बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर सेल बनाएगा। ये जो लोअर बेसल सेल है, दिस वन, दिस विल फॉर्म सस्पेंसर सेल, एंड अपर टर्मिनल सेल जो होगा वो क्या बनाएगा, प्रोएम्ब्रियो। राइट, यू सी हियर, सॉरी, देखें आप इधर, ये प्रोएम्ब्रियो है, दीज आर द सस्पेंसर सेल। अपर टर्मिनल सेल है, ये लोअर बेसल सेल है, इसने सस्पेंसर सेल बना लिया, इसने प्रोएम्ब्रियो बना लिया। व्हाट वी कॉल इट, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। राइट, फिर ये यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स हैं, प्रोएम्ब्रियो ने हार्ट शेप्ड प्रोएम्ब्रियो बना लिया, हार्ट शेप्ड। देन मैच्योर्ड एम्ब्रियो, यहाँ पे आपको हाइपोकॉटिल दिख रहा है, एपिकॉटिल है, एंड दीज आर द कॉटिलेडन्स जो सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंडोस्पर्मिक सीड्स, दीज आर दोज सीड्स इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। मोनोकॉट्स जो होते हैं उनके पास एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। राइट, मोनोकॉट्स के पास एंडोस्पर्म होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स डायकॉट्स में देखने को मिलते हैं, इनके पास एंडोस्पर्म्स कम्प्लीटली यूज्ड हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मोनोकॉट्स जो होते हैं वो थोड़े लेस डेवलप्ड होते हैं। राइट, आप मेल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, डायकॉट में आप ग्राम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो डायकॉट्स ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो इन डायकॉट्स में, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो एंडोस्पर्म है कम्प्लीटली यूज्ड हो जाएगा। तब कि यहाँ पे लेस डेवलप्ड हैं तो एनर्जी कम चाहिए होगा। राइट, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ डायकॉट सीड देखते हैं। फर्स्टली कॉटिलेडन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड को, ये स्टोर कर लेता है न्यूट्रिशन को। प्लूमूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, यू सी हियर, ये एपिकॉटिल है, एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, हाइपो मीन्स ब्लो एंड कॉटिल मीन्स कॉटिलेडन। सो ये कॉटिलेडन्स हैं, कॉटिलेडन्स के नीचे हाइपोकॉटिल, उसके ऊपर एपिकॉटिल, एपी मीन्स अपॉन, एंड दिस इज द रेडिकल, दिस इज द प्लूमूल। Radical will develop into root and plumule will develop into shoot. This is the embryonal axis. Okay, ये cotyledons हैं, right? Monocot seed. You see here, scutellum. यहाँ पे क्या होता है, seed जो seed coat होता है उसकी जगह scutellum present होता है। यहाँ पे scutellum होता है। Scutellum is basically the reduced cotyledon. Scutellum reduced cotyledon होता है, seed coat नहीं होता है। ये कॉलियोप्टाइल है, ये कॉलियोरहिजा है, यू सी हियर,
ये प्लूमूल के ऊपर कवरिंग होती है और ये किसके ऊपर कवरिंग होगी बताइए, रेडिकल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं पी कॉलियोप्टाइल, पी प्लूमूल एंड आर रेडिकल कॉलियोरहिजा। ओके, स्कूटेलम इज रिड्यूस्ड कॉटिलेडन, आई एम सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी, स्कूटेलम इज नॉट द सीड कोट, इट इज द रिड्यूस्ड कॉटिलेडन। Examples of non-endospermic seeds, mostly dicot, also known as X. albuminous। तो आप इस तरीके से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स डाइकॉट के एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मोस्टली डाइकॉट, इट मीन्स कि कुछ ऐसे मोनोकॉट्स भी हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। X. albuminous, नॉट ग्रो ओनली ग्राम्स भी पॉसिबल। नॉन एंडोस्पर्मिक ग्रो ग्राउंडनट ओनली ऑर्चिड, ये एक मोनोकॉट है बट स्टिल नॉन एंडोस्पर्मिक है, राइट। तो मोनोकॉट भी नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है। ग्राम्स ग्राम, बी बीन्स, पी मटर। ओके, एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्बमिनस सीड्स, ऑल इंडो BMW कार्ड्स आर रिच एंड कॉस्टली। एल्बमिनस एंडोस्पर्म, बार्ली मेज बीट, कैस्टर एंड कॉटन ये डाइकॉट हैं बट एंडोस्पर्मिक है। राइस एंड कोकोनट। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड कोट है, एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। सीड कोट आपका आउटर सीड कोट टेस्टा और इनर सीड कोट टैगमेन। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस टेस्टा, बिना टेस्ट को क्लियर करे आप अंदर नहीं जा सकते। टेस्टा आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट टैगमेन। ओके, फ्रूट राइपन्ड, फर्टिलाइज्ड और मैच्योर्ड ओवरी। ओवरी आपका ट्रू फ्रूट हो सकता है, फॉल्स फ्रूट हो सकता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो सकता है। ट्रू फ्रूट, अगर फ्रूट डेवलप हुआ है ओवरी से देन वी विल कॉल इट ट्रू फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी के अलावा किसी दूसरे फ्लोरल पार्ट से डेवलप हुआ है लाइक थैलेमस, वी विल कॉल इट फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वर्जिन फ्रूट होता है, मीन्स फ्रूट का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं, फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जनरली सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, राइट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ट्रू फ्रूट बेस्ड ऑन पेरिकार्प और फ्रूट वॉल मे बी फ्लैशी मे बी ड्राई। इन फ्लैशी थिक एंड फ्लैशी वॉल, इन ड्राई फ्रूट्स थिन एंड ड्राई वॉल। फ्लैशी फ्रूट्स एग्जाम्पल्स आर ऑरेंज, मैंगो, guava. Dry fruits mustard and groundnut. In false fruit, strawberry, apple, cashew, pear. Strawberry develops from the thalamus. Apple also develops from the thalamus. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है बनाना, सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस भी किया जा सकता है बाय इंजेक्टिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। माइक्रोपाइल, इट इज़ अ पोर थ्रू विच एयर एंड वाटर एंटर्स द सीड। हाइलम नॉच और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बिटवीन फ्यूनिकल कॉर्ड एंड ओव्यूल। ब्लैक पेपर एंड बीट रूट में न्यूसेलस जो होता है इट इज़ परसिस्टेंट होता है, किसमें, ब्लैक पेपर में एंड बीट रूट में। न्यूसेलस परसिस्टेंट होता है, पेरिस्पर्म बोलते हैं और सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। डोरमेंसी ऑफ सीड, एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे इनएक्टिव होता है एम्ब्रियो। ओके, इट इज़ अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो when the seed is not able to germinate due to unfavorable environmental condition। जनरल एक्टिविटी जो होती है एम्ब्रियो की, इट स्लोज डाउन, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन से प्रोवाइड करोगे इट विल ग्रो अगेन। सीड्स जो होते हैं बेसिस होते हैं एग्रीकल्चर का। डोरमेंट सीड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। सीड वायबिलिटी, पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच सीड्स रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट। टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सीड वायबिलिटी, जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। हाइब्रिड सीड्स डिज़ायर्ड एंड कॉस्टली। डिज़ायर्ड इसीलिए क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है ऐसे सीड्स से। कॉस्टली होते हैं बिकॉज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फार्म्स, हाइब्रिड प्लांट, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट जनरेशन सीड इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड सीड। अगर आपने एक बार हाइब्रिड सीड को ग्रो कराया सॉइल में एंड प्लांट ग्रो होता है, उससे जो सीड मिलेंगे वो सीड हाइब्रिड नहीं होंगे। मीन्स जितनी बार हमको हाइब्रिड क्रॉप ग्रो करना होगा, हाइब्रिड सीड हमको वहाँ पे लगाना होगा। कैन नॉट यूज़ दिस सीड्स टू ग्रो डिज़ायर्ड हाइब्रिड प्लांट। एपोमिक्सीज, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सीज मीन्स मैरिज। एपोमिक्सीज एक असेक्सुअल सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे सीड्स को सेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो बायपास करता है मियोसिस को और फर्टिलाइजेशन को। मीन्स ये मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की तरह होता है बट एक्चुअल में उनकी तरह नहीं होता है। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, एपोमिक्सीज में जो फीमेल गैमीट है, एग वो डेवलप होता है बिना मियोसिस के एंड एम्ब्रियो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ये एक तरीके का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक्स करता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को। एग्जाम्पल रोजेशिया एंड ग्रासेस, पार्थिनोकार्पी फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सीज सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस एम्ब्रियो फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मैनी एंड एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। When more than one embryo present in a seed it is called polyembryony। देखें यहाँ पे आप, ये एम्ब्रियो है, ये न्यूसेलस है। हमने क्या पढ़ा था, न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स होते हैं, कोई एक सेल डेवलप होकर क्या बना लेता है, मेगास्पोर मदर सेल, राइट। तो फर्दर आपके 4 मेगास्पोर्स बनाता है, उसमें से एक ही आपका आगे जा पाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब एक से ज़्यादा सेल्स जो होते हैं न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बना लेते हैं तो वहाँ पे आपका पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स, मैंगो है, ऑरेंज है। न्यूसेलस सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड प्रोट्रूड्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ओके, नाउ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। In some species pollen release and stigma receptivity are not synchronized। मतलब जो पॉलन का रिलीज़ होता है और जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है वो एक साथ नहीं होती। या तो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज़ हो जाता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव बनता है पॉलन ग्रेन के लिए, या फिर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, पॉलन ग्रेन बाद में रिलीज़ होता है। मतलब वो मैच नहीं करते, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती है दोनों की, पॉलन ग्रेन का रिलीज़ होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना। एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड होते हैं डिफरेंट पोजिशंस पे, राइट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो दीज आर द 3 मेन रीजंस कि यहाँ पे मैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की हेल्प होती है कि हम पॉलन ग्रेन को पहुँचाएँ स्टिग्मा तक, क्योंकि वो खुद नहीं पहुँच सकता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इफ़ प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इफ़ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। सेम प्लांट पे है तो प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जीटोनोगैमी, एग्जाम्पल कास्टर एंड मेज। अगर डिफरेंट प्लांट्स पे तो प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी, एग्जाम्पल पपाया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर। I hope it will help you. It helped me a lot. That's why I made this video, so that this could also help you. Thank you very much for watching this. Thank you.